ایکچولی میں فواد کے ساتھ فٹ بال کا میچ دیکھ رہا ہوں، اس لیے نہیں آ پاؤں گا۔ دیکھو شہریر، ایک تو تم مجھے لاسٹ مومنٹ پہ انوائٹ کر رہی اور ایکسپیکٹ کر رہی ہو کہ میں توڑا توڑا چلا ہوں، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ شہرین کے گھر کال کرو، مجھے ان کے ہاں جانا ہے۔ آپ شہرین کے گھر جائیں گی؟ آپ کا کیا کام ہے وہاں پہ؟ کیا مطلب ہے کیا کام ہے؟ میری ہونے والی بہو کا گھر ہے، بیٹے کی ماں ہوں، کیوں نہ خدمت خاطریں کرواؤں جا کر۔ ایکچولی مجھے ان کے ہاں جانا ہے، کچھ شادی کے معاملات ڈسکس کرنے، کچھ جیولری کپڑوں کی ڈیزائننگ کے حوالے سے شہرین کا ان سب باتوں میں شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ شادی کی تیاریاں کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ کیا مطلب ہے شادی کی تیاری کہاں سے بیچ میں آ گئی ہے؟ پہلے تم نے آنن فانن منگلی کر لی، اب تم کہہ رہے ہو کہ شادی ہبڑ دبڑ میں شادی کرو گے تم؟ ایسا نہیں ہونے دوں گی، مجھے ہر چیز کو انجوائے کرنا ہے، تیاری کرنی ہے بیٹا۔ آف کورس میرے خاندان کی پہلی شادی ہے۔ امی شادی کہاں ہو رہی ہے؟ میرا مطلب ابھی تھوڑی ہو رہی ہے۔ فہام شادی ابھی ہوگی، خدا خدا کر کے تم راضی ہوئے ہو شادی کے لیے، ہمیں ان دونوں ہم لوگوں کو ان کے گھر آنا جانا چاہیے۔ 12 دروازوں والا محل۔ ایک قدیم شہر کے باہر ایک محل تھا جس میں 12 دروازے تھے۔ ہر دروازہ ایک الگ راستے کی طرف کھلتا، مگر محل کا آخری دروازہ صرف اس شخص کے لیے کھلتا تھا جو سچائی کا راستہ چنتا۔ 17 سالہ ایان نے اس محل کا راز جاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ پہلے دروازے سے داخل ہوا تو اسے سونے سے بھرا کمرہ ملا، مگر اس نے کچھ نہیں لیا۔ دوسرے دروازے کے پیچھے طاقت کا تاج رکھا تھا، مگر اس نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ تیسرے دروازے کے پیچھے شہرت کی تختی تھی، لیکن ایان نے کہا، ایسی شہرت کا کیا فائدہ جو اچھے کردار کے بغیر ہو۔ وہ 11 دروازوں سے گزرتا گیا اور ہر بار اسے دولت، طاقت یا شہرت میں سے کچھ نہ کچھ پیش کیا گیا۔ اس نے ہر بار انکار کیا۔ آخرکار 12واں دروازہ اس کے سامنے آ گیا۔ دروازے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، تم نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ ایان نے جواب دیا، ایسا علم جو میرے شہر کے لوگوں کے کام آئے۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک عظیم لائبریری تھی جس میں ہزاروں کتابیں موجود تھیں۔ ایان نے کتابیں اپنے ساتھ لے جانے کے بجائے شہر کے لیے ایک لائبریری قائم کی جہاں ہر شخص مفت علم حاصل کر سکتا تھا۔ کچھ سال بعد وہ شہر پورے علاقے میں تعلیم اور ترقی کی مثال بن گیا۔ ایک بزرگ نے ایان سے پوچھا، تم نے محل کا سب سے بڑا خزانہ کیا پایا؟ ایان مسکرایا اور بولا، یہ سمجھ کے علم کو بانٹنے سے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سبق: دولت ختم ہو سکتی ہے، طاقت چھن سکتی ہے اور شہرت مٹ سکتی ہے، مگر علم وہ خزانہ ہے جو بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے۔ 12 دروازوں والا محل۔ ایک قدیم شہر کے باہر ایک محل تھا جس میں 12 دروازے تھے۔ ہر دروازہ ایک الگ راستے کی طرف کھلتا، مگر محل کا آخری دروازہ صرف اس شخص کے لیے کھلتا تھا جو سچائی کا راستہ چنتا۔ 17 سالہ ایان نے اس محل کا راز جاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ پہلے دروازے سے داخل ہوا تو اسے سونے سے بھرا کمرہ ملا، مگر اس نے کچھ نہیں لیا۔ دوسرے دروازے کے پیچھے طاقت کا تاج رکھا تھا، مگر اس نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ تیسرے دروازے کے پیچھے شہرت کی تختی تھی، لیکن ایان نے کہا، ایسی شہرت کا کیا فائدہ جو اچھے کردار کے بغیر ہو۔ وہ 11 دروازوں سے گزرتا گیا اور ہر بار اسے دولت، طاقت یا شہرت میں سے کچھ نہ کچھ پیش کیا گیا۔ اس نے ہر بار انکار کیا۔ آخرکار 12واں دروازہ اس کے سامنے آ گیا۔ دروازے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، تم نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ ایان نے جواب دیا، ایسا علم جو میرے شہر کے لوگوں کے کام آئے۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک عظیم لائبریری تھی جس میں ہزاروں کتابیں موجود تھیں۔ ایان نے کتابیں اپنے ساتھ لے جانے کے بجائے شہر کے لیے ایک لائبریری قائم کی جہاں ہر شخص مفت علم حاصل کر سکتا تھا۔ کچھ سال بعد وہ شہر پورے علاقے میں تعلیم اور ترقی کی مثال بن گیا۔ ایک بزرگ نے ایان سے پوچھا، تم نے محل کا سب سے بڑا خزانہ کیا پایا؟ ایان مسکرایا اور بولا، یہ سمجھ کے علم کو بانٹنے سے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سبق: دولت ختم ہو سکتی ہے، طاقت چھن سکتی ہے اور شہرت مٹ سکتی ہے، مگر علم وہ خزانہ ہے جو بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے۔ 12 دروازوں والا محل۔ ایک قدیم شہر کے باہر ایک محل تھا جس میں 12 دروازے تھے۔ ہر دروازہ ایک الگ راستے کی طرف کھلتا، مگر محل کا آخری دروازہ صرف اس شخص کے لیے کھلتا تھا جو سچائی کا راستہ چنتا۔ 17 سالہ ایان نے اس محل کا راز جاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ پہلے دروازے سے داخل ہوا تو اسے سونے سے بھرا کمرہ ملا، مگر اس نے کچھ نہیں لیا۔ دوسرے دروازے کے پیچھے طاقت کا تاج رکھا تھا، مگر اس نے اسے بھی چھوڑ دیا۔
तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो। वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया। इसने हर बार इनकार किया। आखिरकार 12वां दरवाज़ा इसके सामने आ गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अयन ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे शहर के लोगों के काम आए। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक अजीम लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों किताबें मौजूद थीं। अयन ने किताबें अपने साथ ले जाने के बजाय शहर के लिए एक लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स मुफ्त इल्म हासिल कर सकता था। कुछ साल बाद वो शहर पूरे इलाके में तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने अयन से पूछा, तुमने महल का सबसे बड़ा खजाना क्या पाया। अयन मुस्कुराया और बोला, ये समझ के इल्म को बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, ताकत छन सकती है और शोहरत मिट सकती है, मगर इल्म वो ख़जाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। 12 दरवाज़ों वाला महल। एक कदीम शहर के बाहर एक महल था जिसमें 12 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग रास्ते की तरफ खुलता, मगर महल का आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता था जो सच्चाई का रास्ता चुनता। 17 साला अयन ने इस महल का राज जानने का फैसला किया। वो पहले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे सोने से भरा कमरा मिला, मगर उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे ताकत का ताज रखा था, मगर उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो। वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया। इसने हर बार इनकार किया। आखिरकार 12वां दरवाज़ा इसके सामने आ गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अयन ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे शहर के लोगों के काम आए। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक अजीम लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों किताबें मौजूद थीं। अयन ने किताबें अपने साथ ले जाने के बजाय शहर के लिए एक लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स मुफ्त इल्म हासिल कर सकता था। कुछ साल बाद वो शहर पूरे इलाके में तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने अयन से पूछा, तुमने महल का सबसे बड़ा खजाना क्या पाया। अयन मुस्कुराया और बोला, ये समझ के इल्म को बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, ताकत छन सकती है और शोहरत मिट सकती है, मगर इल्म वो खजाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। 12 दरवाज़ों वाला महल। एक कदीम शहर के बाहर एक महल था जिसमें 12 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग रास्ते की तरफ खुलता, मगर महल का आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता था जो सच्चाई का रास्ता चुनता। 17 साला अयन ने इस महल का राज जानने का फैसला किया। वो पहले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे सोने से भरा कमरा मिला, मगर उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे ताकत का ताज रखा था, मगर उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो। वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया। इसने हर बार इनकार किया। आखिरकार 12वां दरवाज़ा इसके सामने आ गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अयन ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे शहर के लोगों के काम आए। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक अजीम लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों किताबें मौजूद थीं। अयन ने किताबें अपने साथ ले जाने के बजाय शहर के लिए एक लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स मुफ्त इल्म हासिल कर सकता था। कुछ साल बाद वो शहर पूरे इलाके में तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने अयन से पूछा, तुमने महल का सबसे बड़ा खजाना क्या पाया। अयन मुस्कुराया और बोला, ये समझ के इल्म को बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, ताकत छन सकती है और शोहरत मिट सकती है, मगर इल्म वो खजाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। 12 दरवाज़ों वाला महल। एक कदीम शहर के बाहर एक महल था जिसमें 12 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग रास्ते की तरफ खुलता, मगर महल का आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता था जो सच्चाई का रास्ता चुनता। 17 साला अयन ने इस महल का राज जानने का फैसला किया। वो पहले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे सोने से भरा कमरा मिला, मगर उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे ताकत का ताज रखा था, मगर उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा,
ऐसी शोहरत का किया फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो। वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया। इसने हर बार इनकार किया। आखिरकार 12वां दरवाज़ा इसके सामने आ गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अयन ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे शहर के लोगों के काम आए। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक अजीम लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों किताबें मौजूद थीं। अयन ने किताबें अपने साथ ले जाने के बजाय शहर के लिए एक लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स मुफ्त इल्म हासिल कर सकता था। कुछ साल बाद वो शहर पूरे इलाके में तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने अयन से पूछा, तुमने महल का सबसे बड़ा खजाना क्या पाया? अयन मुस्कुराया और बोला, ये समझ के इल्म को बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, ताकत छन सकती है और शोहरत मिट सकती है, मगर इल्म वो ख़जाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। 12 दरवाज़ों वाला महल। एक कदीम शहर के बाहर एक महल था जिसमें 12 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग रास्ते की तरफ खुलता, मगर महल का आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता था जो सच्चाई का रास्ता चुनता। 17 साला अयन ने इस महल का राज जानने का फैसला किया। वो पहले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे सोने से भरा कमरा मिला, मगर उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे ताकत का ताज रखा था, मगर उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो। वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया। इसने हर बार इनकार किया। आखिरकार 12वां दरवाज़ा इसके सामने आ गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अयन ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे शहर के लोगों के काम आए। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक अजीम लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों किताबें मौजूद थीं। अयन ने किताबें अपने साथ ले जाने के बजाय शहर के लिए एक लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स मुफ्त इल्म हासिल कर सकता था। कुछ साल बाद वो शहर पूरे इलाके में तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने अयन से पूछा, तुमने महल का सबसे बड़ा खजाना क्या पाया? अयन मुस्कुराया और बोला, ये समझ के इल्म को बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, ताकत छन सकती है और शोहरत मिट सकती है, मगर इल्म वो खजाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। 12 दरवाज़ों वाला महल। एक कदीम शहर के बाहर एक महल था जिसमें 12 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग रास्ते की तरफ खुलता, मगर महल का आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता था जो सच्चाई का रास्ता चुनता। 17 साला अयन ने इस महल का राज जानने का फैसला किया। वो पहले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे सोने से भरा कमरा मिला, मगर उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे ताकत का ताज रखा था, मगर उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो। वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया। इसने हर बार इनकार किया। आखिरकार 12वां दरवाज़ा इसके सामने आ गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अयन ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे शहर के लोगों के काम आए। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक अजीम लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों किताबें मौजूद थीं। अयन ने किताबें अपने साथ ले जाने के बजाय शहर के लिए एक लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स मुफ्त इल्म हासिल कर सकता था। कुछ साल बाद वो शहर पूरे इलाके में तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने अयन से पूछा, तुमने महल का सबसे बड़ा खजाना क्या पाया? अयन मुस्कुराया और बोला, ये समझ के इल्म को बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, ताकत छन सकती है और शोहरत मिट सकती है, मगर इल्म वो खजाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। 12 दरवाज़ों वाला महल। एक कदीम शहर के बाहर एक महल था जिसमें 12 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग रास्ते की तरफ खुलता, मगर महल का आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता था जो सच्चाई का रास्ता चुनता। 17 साला अयन ने इस महल का राज जानने का फैसला किया। वो पहले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे सोने से भरा कमरा मिला, मगर उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे ताकत का ताज रखा था, मगर उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो।
वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया। इसने हर बार इनकार किया। आखिरकार 12वां दरवाज़ा इसके सामने आ गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अयन ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे शहर के लोगों के काम आए। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक अजीम लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों किताबें मौजूद थीं। अयन ने किताबें अपने साथ ले जाने के बजाय शहर के लिए एक लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स मुफ्त इल्म हासिल कर सकता था। कुछ साल बाद वो शहर पूरे इलाके में तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने अयन से पूछा, तुमने महल का सबसे बड़ा खजाना क्या पाया? अयन मुस्कुराया और बोला, ये समझ के इल्म को बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, ताकत छिन सकती है और शोहरत मिट सकती है, मगर इल्म वो ख़जाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। 12 दरवाज़ों वाला महल। एक कदीम शहर के बाहर एक महल था जिसमें 12 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग रास्ते की तरफ खुलता, मगर महल का आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता था जो सच्चाई का रास्ता चुनता। 17 साला अयन ने इस महल का राज जानने का फैसला किया। वो पहले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे सोने से भरा कमरा मिला, मगर उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे ताकत का ताज रखा था, मगर उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो। वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया। इसने हर बार इनकार किया। आखिरकार 12वां दरवाज़ा इसके सामने आ गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अयन ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे शहर के लोगों के काम आए। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक अजीम लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों किताबें मौजूद थीं। अयन ने किताबें अपने साथ ले जाने के बजाय शहर के लिए एक लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स मुफ्त इल्म हासिल कर सकता था। कुछ साल बाद वो शहर पूरे इलाके में तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने अयन से पूछा, तुमने महल का सबसे बड़ा खजाना क्या पाया? अयन मुस्कुराया और बोला, ये समझ के इल्म को बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, ताकत छिन सकती है और शोहरत मिट सकती है, मगर इल्म वो खजाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। 12 दरवाज़ों वाला महल। एक कदीम शहर के बाहर एक महल था जिसमें 12 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग रास्ते की तरफ खुलता, मगर महल का आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता था जो सच्चाई का रास्ता चुनता। 17 साला अयन ने इस महल का राज जानने का फैसला किया। वो पहले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे सोने से भरा कमरा मिला, मगर उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे ताकत का ताज रखा था, मगर उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो। वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया। इसने हर बार इनकार किया। आखिरकार 12वां दरवाज़ा इसके सामने आ गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अयन ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे शहर के लोगों के काम आए। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक अजीम लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों किताबें मौजूद थीं। अयन ने किताबें अपने साथ ले जाने के बजाय शहर के लिए एक लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स मुफ्त इल्म हासिल कर सकता था। कुछ साल बाद वो शहर पूरे इलाके में तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने अयन से पूछा, तुमने महल का सबसे बड़ा खजाना क्या पाया? अयन मुस्कुराया और बोला, ये समझ के इल्म को बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, ताकत छिन सकती है और शोहरत मिट सकती है, मगर इल्म वो खजाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। 12 दरवाज़ों वाला महल। एक कदीम शहर के बाहर एक महल था जिसमें 12 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग रास्ते की तरफ खुलता, मगर महल का आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता था जो सच्चाई का रास्ता चुनता। 17 साला अयन ने इस महल का राज जानने का फैसला किया। वो पहले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे सोने से भरा कमरा मिला, मगर उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे ताकत का ताज रखा था, मगर उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो। वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया।
इसने हर बार इनकार किया। आखिरकार 12वां दरवाज़ा इसके सामने आ गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अयन ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे शहर के लोगों के काम आए। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक अजीम लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों किताबें मौजूद थीं। अयन ने किताबें अपने साथ ले जाने के बजाय शहर के लिए एक लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स मुफ्त इल्म हासिल कर सकता था। कुछ साल बाद वो शहर पूरे इलाके में तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने अयन से पूछा, तुमने महल का सबसे बड़ा खजाना क्या पाया? अयन मुस्कुराया और बोला, ये समझ के इल्म को बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, ताकत छन सकती है और शोहरत मिट सकती है, मगर इल्म वो ख़जाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। 12 दरवाज़ों वाला महल। एक कदीम शहर के बाहर एक महल था जिसमें 12 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग रास्ते की तरफ खुलता, मगर महल का आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता था जो सच्चाई का रास्ता चुनता। 17 साला अयन ने इस महल का राज जानने का फैसला किया। वो पहले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे सोने से भरा कमरा मिला, मगर उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे ताकत का ताज रखा था, मगर उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो। वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया। इसने हर बार इनकार किया। आखिरकार 12वां दरवाज़ा इसके सामने आ गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अयन ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे शहर के लोगों के काम आए। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक अजीम लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों किताबें मौजूद थीं। अयन ने किताबें अपने साथ ले जाने के बजाय शहर के लिए एक लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स मुफ्त इल्म हासिल कर सकता था। कुछ साल बाद वो शहर पूरे इलाके में तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने अयन से पूछा, तुमने महल का सबसे बड़ा खजाना क्या पाया? अयन मुस्कुराया और बोला, ये समझ के इल्म को बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, ताकत छन सकती है और शोहरत मिट सकती है, मगर इल्म वो खजाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। 12 दरवाज़ों वाला महल। एक कदीम शहर के बाहर एक महल था जिसमें 12 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग रास्ते की तरफ खुलता, मगर महल का आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता था जो सच्चाई का रास्ता चुनता। 17 साला अयन ने इस महल का राज जानने का फैसला किया। वो पहले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे सोने से भरा कमरा मिला, मगर उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे ताकत का ताज रखा था, मगर उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो। वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया। इसने हर बार इनकार किया। आखिरकार 12वां दरवाज़ा इसके सामने आ गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अयन ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे शहर के लोगों के काम आए। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक अजीम लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों किताबें मौजूद थीं। अयन ने किताबें अपने साथ ले जाने के बजाय शहर के लिए एक लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स मुफ्त इल्म हासिल कर सकता था। कुछ साल बाद वो शहर पूरे इलाके में तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने अयन से पूछा, तुमने महल का सबसे बड़ा खजाना क्या पाया? अयन मुस्कुराया और बोला, ये समझ के इल्म को बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, ताकत छन सकती है और शोहरत मिट सकती है, मगर इल्म वो खजाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। 12 दरवाज़ों वाला महल। एक कदीम शहर के बाहर एक महल था जिसमें 12 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग रास्ते की तरफ खुलता, मगर महल का आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता था जो सच्चाई का रास्ता चुनता। 17 साला अयन ने इस महल का राज जानने का फैसला किया। वो पहले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे सोने से भरा कमरा मिला, मगर उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे ताकत का ताज रखा था, मगर उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो। वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया। इसने हर बार इनकार किया। आखिरकार 12वां दरवाज़ा इसके सामने आ गया।
दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अयन ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे शहर के लोगों के काम आए। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक अजीम लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों किताबें मौजूद थीं। अयन ने किताबें अपने साथ ले जाने के बजाय शहर के लिए एक लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स मुफ्त इल्म हासिल कर सकता था। कुछ साल बाद वो शहर पूरे इलाके में तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने अयन से पूछा, तुमने महल का सबसे बड़ा खजाना क्या पाया? अयन मुस्कुराया और बोला, ये समझ के इल्म को बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, ताकत छिन सकती है और शोहरत मिट सकती है, मगर इल्म वो ख़जाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। 12 दरवाज़ों वाला महल। एक कदीम शहर के बाहर एक महल था जिसमें 12 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग रास्ते की तरफ खुलता, मगर महल का आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता था जो सच्चाई का रास्ता चुनता। 17 साला अयन ने इस महल का राज जानने का फैसला किया। वो पहले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे सोने से भरा कमरा मिला, मगर उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे ताकत का ताज रखा था, मगर उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो। वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया। इसने हर बार इनकार किया। आखिरकार 12वां दरवाज़ा इसके सामने आ गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अयन ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे शहर के लोगों के काम आए। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक अजीम लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों किताबें मौजूद थीं। अयन ने किताबें अपने साथ ले जाने के बजाय शहर के लिए एक लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स मुफ्त इल्म हासिल कर सकता था। कुछ साल बाद वो शहर पूरे इलाके में तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने अयन से पूछा, तुमने महल का सबसे बड़ा खजाना क्या पाया? अयन मुस्कुराया और बोला, ये समझ के इल्म को बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, ताकत छिन सकती है और शोहरत मिट सकती है, मगर इल्म वो खजाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। 12 दरवाज़ों वाला महल। एक कदीम शहर के बाहर एक महल था जिसमें 12 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग रास्ते की तरफ खुलता, मगर महल का आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता था जो सच्चाई का रास्ता चुनता। 17 साला अयन ने इस महल का राज जानने का फैसला किया। वो पहले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे सोने से भरा कमरा मिला, मगर उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे ताकत का ताज रखा था, मगर उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो। वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया। इसने हर बार इनकार किया। आखिरकार 12वां दरवाज़ा इसके सामने आ गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अयन ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे शहर के लोगों के काम आए। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक अजीम लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों किताबें मौजूद थीं। अयन ने किताबें अपने साथ ले जाने के बजाय शहर के लिए एक लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स मुफ्त इल्म हासिल कर सकता था। कुछ साल बाद वो शहर पूरे इलाके में तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने अयन से पूछा, तुमने महल का सबसे बड़ा खजाना क्या पाया? अयन मुस्कुराया और बोला, ये समझ के इल्म को बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, ताकत छिन सकती है और शोहरत मिट सकती है, मगर इल्म वो खजाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। 12 दरवाज़ों वाला महल। एक कदीम शहर के बाहर एक महल था जिसमें 12 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग रास्ते की तरफ खुलता, मगर महल का आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता था जो सच्चाई का रास्ता चुनता। 17 साला अयन ने इस महल का राज जानने का फैसला किया। वो पहले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे सोने से भरा कमरा मिला, मगर उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे ताकत का ताज रखा था, मगर उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो। वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया। इसने हर बार इनकार किया। आखिरकार 12वां दरवाज़ा इसके सामने आ गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
अयन ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे शहर के लोगों के काम आए। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक अजीम लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों किताबें मौजूद थीं। अयन ने किताबें अपने साथ ले जाने के बजाय शहर के लिए एक लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स मुफ्त इल्म हासिल कर सकता था। कुछ साल बाद वो शहर पूरे इलाके में तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने अयन से पूछा, तुमने महल का सबसे बड़ा खजाना क्या पाया? अयन मुस्कुराया और बोला, ये समझ के इल्म को बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, ताकत छन सकती है और शोहरत मिट सकती है, मगर इल्म वो ख़जाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। 12 दरवाज़ों वाला महल। एक कदीम शहर के बाहर एक महल था जिसमें 12 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग रास्ते की तरफ खुलता, मगर महल का आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता था जो सच्चाई का रास्ता चुनता। 17 साला अयन ने इस महल का राज जानने का फैसला किया। वो पहले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे सोने से भरा कमरा मिला, मगर उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे ताकत का ताज रखा था, मगर उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो। वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया। इसने हर बार इनकार किया। आखिरकार 12वां दरवाज़ा इसके सामने आ गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अयन ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे शहर के लोगों के काम आए। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक अजीम लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों किताबें मौजूद थीं। अयन ने किताबें अपने साथ ले जाने के बजाय शहर के लिए एक लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स मुफ्त इल्म हासिल कर सकता था। कुछ साल बाद वो शहर पूरे इलाके में तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने अयन से पूछा, तुमने महल का सबसे बड़ा खजाना क्या पाया? अयन मुस्कुराया और बोला, ये समझ के इल्म को बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, ताकत छन सकती है और शोहरत मिट सकती है, मगर इल्म वो खजाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। 12 दरवाज़ों वाला महल। एक कदीम शहर के बाहर एक महल था जिसमें 12 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग रास्ते की तरफ खुलता, मगर महल का आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता था जो सच्चाई का रास्ता चुनता। 17 साला अयन ने इस महल का राज जानने का फैसला किया। वो पहले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे सोने से भरा कमरा मिला, मगर उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे ताकत का ताज रखा था, मगर उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो। वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया। इसने हर बार इनकार किया। आखिरकार 12वां दरवाज़ा इसके सामने आ गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अयन ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे शहर के लोगों के काम आए। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक अजीम लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों किताबें मौजूद थीं। अयन ने किताबें अपने साथ ले जाने के बजाय शहर के लिए एक लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स मुफ्त इल्म हासिल कर सकता था। कुछ साल बाद वो शहर पूरे इलाके में तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने अयन से पूछा, तुमने महल का सबसे बड़ा खजाना क्या पाया? अयन मुस्कुराया और बोला, ये समझ के इल्म को बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, ताकत छन सकती है और शोहरत मिट सकती है, मगर इल्म वो खजाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। 12 दरवाज़ों वाला महल। एक कदीम शहर के बाहर एक महल था जिसमें 12 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग रास्ते की तरफ खुलता, मगर महल का आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता था जो सच्चाई का रास्ता चुनता। 17 साला अयन ने इस महल का राज जानने का फैसला किया। वो पहले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे सोने से भरा कमरा मिला, मगर उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे ताकत का ताज रखा था, मगर उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो। वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया। इसने हर बार इनकार किया। आखिरकार 12वां दरवाज़ा इसके सामने आ गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अयन ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे शहर के लोगों के काम आए। दरवाज़ा खुल गया।
अंदर एक अजीम लाइब्रेरी थी जिसमें हजारों किताबें मौजूद थीं। अयन ने किताबें अपने साथ ले जाने के बजाय शहर के लिए एक लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स मुफ्त इल्म हासिल कर सकता था। कुछ साल बाद वो शहर पूरे इलाके में तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने अयन से पूछा, तुमने महल का सबसे बड़ा खजाना क्या पाया? अयन मुस्कुराया और बोला, ये समझ के इल्म को बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, ताकत छिन सकती है और शोहरत मिट सकती है, मगर इल्म वो ख़जाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। 12 दरवाज़ों वाला महल। एक कदीम शहर के बाहर एक महल था जिसमें 12 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग रास्ते की तरफ खुलता, मगर महल का आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता था जो सच्चाई का रास्ता चुनता। 17 साला अयन ने इस महल का राज जानने का फैसला किया। वो पहले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे सोने से भरा कमरा मिला, मगर उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे ताकत का ताज रखा था, मगर उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो। वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया। इसने हर बार इनकार किया। आखिरकार 12वां दरवाज़ा इसके सामने आ गया। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अयन ने जवाब दिया, ऐसा इल्म जो मेरे शहर के लोगों के काम आए। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक अजीम लाइब्रेरी थी जिसमें हजारों किताबें मौजूद थीं। अयन ने किताबें अपने साथ ले जाने के बजाय शहर के लिए एक लाइब्रेरी कायम की जहां हर शख्स मुफ्त इल्म हासिल कर सकता था। कुछ साल बाद वो शहर पूरे इलाके में तालीम और तरक्की की मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने अयन से पूछा, तुमने महल का सबसे बड़ा खजाना क्या पाया? अयन मुस्कुराया और बोला, ये समझ के इल्म को बांटने से वो कम नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, ताकत छिन सकती है और शोहरत मिट सकती है, मगर इल्म वो ख़जाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। 12 दरवाज़ों वाला महल। एक कदीम शहर के बाहर एक महल था जिसमें 12 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग रास्ते की तरफ खुलता, मगर महल का आखिरी दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता था जो सच्चाई का रास्ता चुनता। 17 साला अयन ने इस महल का राज जानने का फैसला किया। वो पहले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे सोने से भरा कमरा मिला, मगर उसने कुछ नहीं लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे ताकत का ताज रखा था, मगर उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे शोहरत की तख्ती थी, लेकिन अयन ने कहा, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जो अच्छे किरदार के बगैर हो। वो 11 दरवाज़ों से गुजरता गया और हर बार उसे दौलत, ताकत या शोहरत में से कुछ ना कुछ पेश किया गया। इसने हर बार